Good morning, students. So now, in today's class, we are going to talk about the exercise of chemical effect of electric current. Since we have studied the chapter chemical effects of electric currents, and the chapter is completed, so I am going to discuss the exercise of the chapter, that is chemical effect of electric current. Okay. So today the first question of the chapter is fill in the blanks. And the first question in your NCERT book is that most liquid that conduct electricity are solution of. Fill in the blanks. First question is most liquid that conduct electricity are the solution of. Then what will be the answer? The answer will be acid, base and salt. So for first the answer will be acid, base and salt. Now coming to the second fill in the blanks. The passage of electric current through a solution causes dash effect. Question is the passage of an electric current through a solution causes dash effects. Then the answer will be chemical effects. Its answer will be which effects? It will be chemical effects. Okay. Now third one is if you pass current through copper sulfate solution, as we have seen the activity also that about the electroplating. And this is the fill in the blanks. It is given that if you pass current through copper sulfate solution, copper get deposited on a plate connected to dash terminal of the battery. So which terminal of the battery copper will be connected? The copper will be deposited on the terminal which is connected to the negative terminal of the battery, because copper is positive charge and negative positive attract each other. Now last fill in the blanks. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called, you all know, the process is said to be electroplating. Now second question is when the free end of a tester are dipped in a solution, the magnetic needle show deflection. Can you explain the reason? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है कि जब फ्री एंड्स जो हम लोग टेस्टर बनाए थे, उसका जो फ्री एंड को हमने क्या किया, डिप किया, हम लोगों ने फ्री एंड को डिप कर दिया सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन. देन द रीजन इज व्हाट, that liquid is conducting, that solution is conducting. solution कैसा होगा, तब conducting होगा, और जब conducting होगा तो इस वायर में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट, और जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक, जहां पे भी करंट फ्लो होता है वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम 3 लिक्विड which when tested in a manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect. And we have tested many things like we have taken the HCl like hydrochloric acid, okay, and we have taken the lemon juice also. So many examples are there in the video lecture, you will find from that. Now question number 4, the bulb does not glow in the setup shown in figure 14.10, list the possible reason. देखिए हमने आपको बताया है कि पॉसिबल रीजन क्या होगा कि अगर हमने एक सर्किट ली है, उसमें बल्ब कनेक्ट किए हैं, सपोज करो कि इसके जगह हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो जो पहला रीजन हो सकता है कि द कनेक्शन में भी लूज, सेकेंड रीजन हो सकता है कि बैटरी में भी डिस्चार्ज, थर्ड रीजन ये हो सकता है कि द बल्ब में भी फ्यूज, और फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि द लिक्विड में भी नॉन कंडक्टिंग, दैट्स व्हाई. Now fifth, a tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow brightly for liquid A while it glow very dimly for liquid B. You should conclude that. आप समझ सकते हैं कि जिस केस में बोल रहे हैं कि ब्राइटनेस ज्यादा है, इसका मतलब कि वो जो लिक्विड है वो ज्यादा कंडक्टिंग है, और जिसमें जो ब्राइटनेस है वो कम है, वो लिक्विड ज्यादा कंडक्टिंग नहीं है. इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए, फर्स्ट पार्ट, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर
देन लिक्विड बी, क्योंकि कंडक्टर अगर ज्यादा होगा, कंडक्टर बढ़िया कंडक्टर होगा, अच्छा कंडक्टर होगा तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कंडक्शन होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। नाउ 6, does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? Pure water does not have ions. Okay, pure water does not have ions, so pure water is a bad conductor of electricity. तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें सॉल्ट, अगर उसमें हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं तो अब वो मीडियम कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग मीडियम हो जाएगा। ओके, नाउ 7, इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द फायरमैन use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do so. क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही फायरमैन वाटर हॉसेस को यूज करते हैं उससे पहले वो स्विच को ऑफ कर देते हैं। कहीं आग लगी है और फायरमैन अगर आए वो उस आग को बुझाने तो पहले वो मेन सप्लाई को ऑफ करते हैं, क्योंकि वाटर, आप जानते हो कि वाटर के अंदर वो प्योर वाटर नहीं होता है। दैट वाटर के अंदर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग के आयंस होते हैं, उनको शॉक ना लगे इसकी वजह से व्हाट दे डू, दे शट डाउन द मेन सप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a child staying in a coastal region tests the drinking water and also sea water with his tester. He finds that the compass needle reflects more in the case of sea water. Can you explain the reason? रीजन यही होगा कि जो हम लोग का सी वाटर होगा उसके अंदर ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं और इस वजह से वो ज्यादा क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। और जहाँ ड्रिंकिंग वाटर की बात करेंगे तो उसके केस में उतने आयरन सॉल्ट्स नहीं पाए जाते हैं, तो उसके वजह से वो उतना हम लोग का कंडक्टिंग नहीं होगा। तो कंडक्टिंग सी वाटर के अंदर आप सबको पता है कि सॉल्ट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो मीडियम ज्यादा क्या हो जाता है हम लोग का, कंडक्टिंग। नाउ 9, is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? No. रीजन ये है कि देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन बारिश में बाहर काम कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि रेन वाटर इज प्योर वाटर, लेकिन जब वो रेन वाटर आके हमारा एटमॉस्फेयर में आता है तो इन द एटमॉस्फेयर देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, देयर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो and there is sulfur dioxide also. तो जब रेन वाटर जो हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड से मिलता है तो वहां पे सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वहां पे नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, कार्बन ऑक्साइड से मिलेगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है कि चांसेस होंगे कि वो जो इलेक्ट्रिशियन जो बाहर काम कर रहा है इन द रेन वाटर, सो ही मे गेट शॉक बिकॉज नाउ रेन वाटर इज अ प्योर वाटर। लेकिन जब वो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया वो डिफरेंट गैस से मिला, इट्स बिकम कंडक्टिंग। नाउ 10th, Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle shows deflection. What could be the reason? मैंने 9th वाले क्वेश्चन में जो बताया वही कि रेन वाटर तो हम लोग का एज प्योर एज डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन रेन वाटर जब एटमॉस्फेयर की कंडक्ट में आता है तो एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आने की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एंड व्हेन रेन वाटर इससे जब मिलता है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, बट वहां पे वो एसिड बन गया एंड दैट इज नाउ दैट बिकम कंडक्टिंग। Prepare a list of objects around you that are electroplated. So this is question for you. जितने ऑब्जेक्ट आपके अराउंड है वो देखिएगा और ये लिखिएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है उसको इलेक्ट्रोप्लेट किया गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, the process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrode. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode would be attached to the positive terminal of the battery and why? देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट कीजिएगा, इम्प्योर कॉपर को। क्यों? कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल, कॉपर पॉजिटिव चार्ज, कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जब वो पॉजिटिव टर्मिनल से होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो प्योर होगा उसको निगेटिव से कनेक्ट कर दीजिएगा, थिन लेयर जो है
तो जो इम्प्योर कॉपर जो पॉजिटिव टर्मिनल से सॉल्यूशन में डिप्ड होगा वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैं इसलिए अभी ओरली बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लीज कंप्लीट द एक्सरसाइज in your notebook. Okay, solve the exercise and after completing it send it to or send on my WhatsApp. Thank you. God bless you.